Hello students, good morning. Jai Swami Narayan. All of you, welcome to class first in Atmiya Green School. My name is Prajakta and I am a computer teacher. Now we will start lesson number 3, uses of computer. This lesson we had done already, then also we will see what you had learned in this lesson. So now all of you look at in your textbook. So now all of you look at in your textbook, we will start chapter number 3, uses of computer. So this lesson already we had done, then also we will see what you had learned in this lesson. So lesson name is the uses of computer. So student, all of you know very well what you had learned in this lesson. So student, what you had learned? Yes, we had learned in this lesson what are the uses of computer, which are the uses of computer. So now look at here in this picture. In this picture, that girl name is the Megha. What she is doing? What she is doing? क्या कर रही है वो? She is looking a movie. She is looking a movie. So which movie she looking? Cartoons. Which movie she looking? Cartoons. Now look at here. What can you do with a TV? So student, what can you do with a TV? आप टीवी के साथ क्या करते हो? क्या करते हो टीवी में? You can listen music. आप टीवी में क्या करते हो? Listen music, watch cartoons and movies too. हम टीवी में क्या करते हैं? म्यूज़िक को सुनते हैं, वॉच कार्टून्स देखते हैं, मूवीज़ को भी देखते हैं एंड टू लुक एट द मेगा. शी इज़ अ मेगा. शी इज़ एंजॉइंग अ कार्टून फिल्म्स ऑन हर टीवी. वो क्या कर रही है? ये जो कार्टून है उसमें वो फिल्म देख रही है. कौन सी? कार्टून की फिल्म देख रही है. You can do all of these things on a computer also and more. So she is looking movie on a TV, but you can watch movie and again lot of things you can do on a कंप्यूटर. आप कंप्यूटर में मूवी तो देख सकते हो, उसके अलावा भी आप बहुत सारे काम कर सकते हैं. फॉर एग्जाम्पल यू कैन प्ले गेम्स, then you can watch movies, you can solve sums, like that you can do lots of work on our computer. So now look at here which are uses of computer. So now all of you look at here. You can even play games. You can play games, type, making drawings and solve sums. We can प्ले गेम्स. हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? गेम खेल सकते हैं. टाइप, अगर हमें कुछ लिखना है तो हम टाइप भी कर सकते हैं. मेकिंग ड्राइंग, क्या कर सकते हैं आप? ड्राइंग भी बना सकते हैं. एंड सॉल्व सम को भी हम सॉल्व कर सकते हैं. सो फर्स्ट इज द प्ले गेम. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्ले गेम? PLAY. प्ले. गेम स्पेलिंग GAMES गेम्स. GAMES गेम्स. हम कंप्यूटर में क्या कर सकते हैं? प्ले गेम्स. देन सेकंड इज द टाइप. व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ टाइप? TYPE टाइप. अगेन वन टाइम TYPE टाइप. we can type anything on our computer. Next is the make drawing. We can make drawing on our computer. So what is the spelling of make drawing? MAKE, make, and drawing spelling is DRAWINGS, drawing. Make drawing. We can make drawing on our computer. Then solve sum. What is the spelling of solve sum? SOLVE, solve, and sum spelling SUMS, sums. Solve sums. So we can solve sums on our computer. So now first is the playing games on a computer. We can play games on our computer. So which type of we can play games on our computer? So student, हम कौन से गेम खेल सकते हैं? So in your textbook here written
क्रिकेट, रेसिंग, चेस, बास्केटबॉल। इसके अलावा भी बहुत सारे गेम्स होते हैं जो हम कंप्यूटर के अंदर खेल सकते हैं। बट बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, फर्स्ट आई विल शो यू वन वीडियो अबाउट दिस टॉपिक. So now all of you look at here. Uses of a computer. A computer is a very useful machine. It can be used for multiple purposes. Computers are used for performing large calculations. We can watch movies and cartoons on it. It can store the information or data that we feed in it. We can type letters, documents, and numbers on it. It is used for making drawings and pictures and also coloring them. We can listen to music. Computers can be used for our studies. Computers can be used for sending emails or chatting with friends and relatives through the internet. Computers never get annoyed even if you make mistakes. We can play games on it. The various places where we find computers are at shopping malls for making bills, in hospitals for monitoring the health of patients and also for keeping their records, in banks for keeping the accounts of the customers, in schools for teaching and learning of various subjects. Computers are also used to maintain records of students, in the library to keep a record of the books. They are also used to issue the books, for making films, recordings, animations, etc. In offices for maintaining records of the people and their work. In railways or airlines for reservations. At airports for booking and checking of air tickets. For communication using the internet. It gives a lot of information through internet. In the printing press, the book you are reading is published using computers. Computers are also used in sports, bus stations, homes, hotels, petrol pumps, gaming arena, etc. Sometimes I hope all of you like video. Now we will start our lesson. So we will start from the playing games on a computer. We can play games on a computer. So which type of games and which game we can play on our computer? So students, so all of you know very well which type of we are playing games and which are the games playing on the games. So here in the textbook given the some games we can play on our computer. So we can play games like cricket, racing, chess, basketball on the computer. हम कंप्यूटर में क्रिकेट खेल सकते हैं, रेसिंग खेल सकते हैं, चेस खेल सकते हैं एंड बास्केटबॉल भी खेल सकते हैं. इसके अलावा भी हमारे कंप्यूटर के अंदर बहुत सारे गेम्स होते हैं, उसको हम प्ले कर सकते हैं, खेल सकते हैं. So next page number 24. So now look at here. So first that picture is the cricket. So student, what is the spelling of cricket? C-R-I-C-K-E-T, cricket. Then next is the racing spelling R-A-C-I-N-G, racing. Then next spelling is the chess spelling is C-H-E-S-S, chess. Then basketball B-A-S-K-E-T, basket, B-A-L-L, ball, basketball. So that game we can play on our computer and lots of game we can play on our computer. हमारे कंप्यूटर में हम बहुत सारे गेम को खेल सकते हैं. So first use of computer is playing game. Then next use of the computer is the typing. We can use our computer for a typing. So what is the meaning of typing? What is the meaning of typing? By using the keyboard, we are writing on our keyboard. So this is called the typing. कीबोर्ड का यूज़ करके हम जो कुछ भी लिखेंगे कंप्यूटर में, उसको बोला जाता है
टाइपिंग। जैसे हमें नोटबुक में लिखना है तो हम क्या करते हैं, पेंसिल का यूज़ करते हैं। सेम अगर हमें कंप्यूटर के अंदर कुछ लिखना है तो उसके लिए हम क्या यूज़ करेंगे, कीबोर्ड। सो टाइपिंग स्पेलिंग इज TYPING, टाइपिंग। We use a keyboard. We use a keyboard. Keyboard spelling is KEYBOARD, keyboard. We use a keyboard to write on the computer. कंप्यूटर में कीबोर्ड का यूज़ हम किसके लिए करते हैं, राइट करने के लिए, लिखने के लिए। द कीबोर्ड हैज़ अ मैनी कीज़। कीबोर्ड में क्या होती है, बहुत सारी बटन्स होती है, उस बटन्स को बोला जाता है कीज़। दैट बटन इज़ नोन एज द कीज़। हमारे जो कीबोर्ड होता है उसमें बहुत सारी क्या होती है, छोटी छोटी बटन्स होती है। दैट बटन इज़ नोन एज द कीज़। उसको क्या बोलते हैं, कीज़। दीज कीज़ आर प्रेस टू राइट वर्ड्स एंड नंबर्स। वो जो कीज़ होती है हमारे कीबोर्ड में, उसका यूज़ हम किसके लिए करते हैं, कंप्यूटर में अगर कुछ वर्ड्स लिखना है और नंबर्स लिखना है। फॉर एग्जांपल, यू वांट टू राइट योर नेम ऑन आवर कंप्यूटर, सो फॉर दैट वी विल यूज़ अल्फ़ाबेट कीज, एंड यू वांट टू राइट योर मोबाइल नंबर ऑन आवर कंप्यूटर, सो फॉर दैट विच की यूजिंग यू, नंबर्स की। तो अगर हमें कुछ वर्ड लिखना है, सेंटेंस लिखना है, तो उसके लिए हम कौन सी की यूज़ करेंगे स्टूडेंट, यस करेक्ट। सो फॉर दैट वी आर यूजिंग द अल्फ़ाबेट की। एंड यू वांट टू टाइप any numbers on a computer, so for that which key using, yes student, very good. For that we will use the numbers key. This is called a typing. This is called the typing. Typing means the keyboard has a many keys. These keys are pressed to write words and number. This is called the टाइपिंग। टाइपिंग इसको बोलते हैं हम कीबोर्ड का यूज़ करके नंबर्स और वर्ड्स जो कुछ भी हम टाइप करेंगे, लिखेंगे, उसको क्या बोला जाता है, टाइपिंग। वी ऑल हैव रिटन ऑन पेपर with a pencil, but look at a Rishi, he is writing using the keyboards of a computer. This is called a typing. जब हमें नोटबुक में लिखना है तो हम क्या यूज़ करते हैं, पेंसिल यूज़ करते हैं। नाउ लुक एट हियर, ऋषि वो क्या कर रहा है, कंप्यूटर में लिख रहा है, तो उसके लिए वो क्या यूज़ कर रहा है, उसके लिए वो कीबोर्ड का यूज़ कर रहा है। सो व्हेन वी वांट टू राइट ऑन आवर computer, so for that we are using a keyboard. For that we are using the keyboard. So then making a drawings, when we want to draw any pictures on our computer, so for that we are using the mouse. जब हमें कंप्यूटर में कुछ क्या करना है, ड्रॉ करना है पिक्चर को, तो उसके लिए हम क्या यूज़ करते हैं, माउस का यूज़ करते हैं। मेकिंग अ ड्राइंग, सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ मेकिंग अ ड्राइंग, MAKING, मेकिंग, एंड ड्राइंग स्पेलिंग इज DRAWINGS, ड्राइंग, DRAWINGS, मेकिंग ड्राइंग्स। You can also draw with the help of computer. Vani is drawing using a computer. What is Vani drawing? Can you guess? So student, she is a Vani. So what she drawing? क्या ड्रॉ कर रही है, आप गेस करो। यस स्टूडेंट, गेस करो वो क्या ड्रॉ कर रही है। यस करेक्ट, शी इज ड्राइंग। कौन सा ड्राइंग बनाया है उसने, गेस करो स्टूडेंट। वेरी गुड, उसने क्या किया है, एलिफेंट को बनाया। इसने क्या किया है, एलिफेंट को बनाया है। सो दिस इज द मेकिंग अ ड्राइंग। देन नेक्स्ट इज द ड्रॉ योर फेवरेट फ्रूट्स ऑन द मॉनिटर, नाउ कलर द फ्रूट्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको होमवर्क दिया था।
यहाँ पे आपको क्या करना था, आपका जो फेवरेट फ्रूट है उसको ड्रॉ करना था, देन उसके बाद आपको इस पे कलर को फिल करना था. सो दिस इज मेकिंग अ ड्राइंग. Then next is the solve sum. We can use computer for solve a sum. हमारा जो कंप्यूटर होता है उसका यूज़ हम सम को सॉल्व करने के लिए करते हैं. जैसे हम हमारे नोटबुक में क्या करते हैं, सम को सॉल्व करते हैं. सो जैसे हमारे नोटबुक में हम क्या करते हैं, सम को सॉल्व करते हैं. सो लाइक दैट वी कैन सॉल्व sums on the computer. Like that we can solve the sums on a computer. So now look at here. A computer can also be used to solve a sum. Computer is used for us solve a sum. Solve, you know very well. Solve means we can do addition, subtraction, multiplication, division on our computer by using the कैलकुलेटर प्रोग्राम. अगर हमें कंप्यूटर में सम को सॉल्व करना है तो उसके लिए कैलकुलेटर का प्रोग्राम्स होता है, उसमें हमें क्या करना पड़ता है, सम को सॉल्व करना पड़ता है. जैसे हम नोटबुक में एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन करते हैं, लाइक दैट सेम. सो अ कंप्यूटर कैन ऑल्सो बी यूज टू सॉल्व सम्स. Aisha is adding number on the computer. So she is the Aisha, and Aisha, she using computer for solving a sum. Is not that a great way to do math? लेकिन जब हम मैथ का होमवर्क करते हैं तब हमें कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है. दिस इज़ द प्रोग्राम इज़ यूज फॉर डू अ बिग सम्स. अगर बहुत बड़ा सम्स है तो उसके लिए कैलकुलेटर का यूज़ किया जाता है. बट जब आप मैथ का होमवर्क कर रहे हो, मैथ का वर्क कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कैलकुलेटर का यूज़ नहीं करना है. देन लिसन टू म्यूज़िक. वी कैन लिसन म्यूज़िक ऑन आवर कंप्यूटर. वी कैन ऑल्सो प्ले सॉन्ग्स एंड लिसन टू म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर. हम कंप्यूटर में म्यूज़िक को भी सुन सकते हैं एंड वी कैन वॉच अ मूवी भी देख सकते हैं. वी कैन ऑल्सो प्ले सॉन्ग्स. गेम को प्ले भी कर सकते हैं एंड लिसन टू म्यूज़िक ऑन अ कंप्यूटर. श्याम, प्रिया, विभोर एंड हिना आर हैविंग अ फन, आर नॉट दे? देखो वो क्या कर रहे हैं, वो गाना सुन रहे हैं और वो फन कर रहे हैं, मीन्स डांस भी कर रहे हैं. सो वी कैन लिसन म्यूजिक ऑन अ कंप्यूटर, ऑन द कंप्यूटर. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ लिसनिंग म्यूजिक? LISTENING, listening, TO2, and music spelling is MUSIC, music. We can listening to music on the computer. Then watching cartoons and movies. हम हमारा जो कंप्यूटर होता है उस पे हम वॉच कर सकते हैं कार्टून्स को भी एंड मूवी को. सो नाउ लुक एट हियर. क्रिस एंड हिज फ्रेंड्स आर वॉचिंग कार्टून फिल्म्स ऑन द कंप्यूटर. तो क्रिस और उसके फ्रेंड है वो क्या कर रहे हैं, कार्टून फिल्म को देख रहे हैं. कहाँ पे, कंप्यूटर पे देख रहे. सो वी कैन वॉच मूवी ऑन आवर कंप्यूटर. सो स्पेलिंग इज WATCHING, वॉचिंग. कार्टून CARTOONS, कार्टून्स. AND and movies, MOVIES, movies. वॉचिंग कार्टून्स एंड मूवीज़. तो हम कंप्यूटर का यूज़ मूवी को वॉच करने के लिए देखने के लिए हम कर सकते हैं. देन नेक्स्ट यूज़, कंप्यूटर यूज़ इन द स्कूल. At the school, computer is used in the school. So nowadays your class going on online चल रही है. मतलब टीचर्स
यूज अ कंप्यूटर, टीचर क्या कर रहे हैं, कंप्यूटर का यूज कर रहे फॉर टीचिंग अ स्टूडेंट, फॉर टीचिंग अ स्टूडेंट. सो हैव यू सीन computer in school? Have you seen computer in the school? Yes student, you have see computer in your school? Yes or no? Yes, in your school have a computer, in your school have a computer. So they are very useful for teaching too. So this is very useful for teaching too. So now computer are used for a teaching. So computer is used for a teaching, and computer also used for preparing a exam result. Computer is used for a preparing exam result. So you are getting every year result. आपकी एग्ज़ाम होने के बाद आपको एवरी ईयर क्या मिलती है, रिज़ल्ट मिलती है. तो जो रिज़ल्ट होता है वो कहाँ पे किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर. कहाँ पे किया जाता है, कंप्यूटर के अंदर. एंड टीचर आल्सो यूजिंग कंप्यूटर फॉर अ टीचिंग. टीचर भी कंप्यूटर का यूज़ करते हैं, किसके लिए, पढ़ाने के लिए. किसको पढ़ाने के लिए, स्टूडेंट के लिए. एंड कंप्यूटर इज़ यूज इन द स्कूल फॉर मेंटेनिंग द रिकॉर्ड्स ऑफ स्टूडेंट. जो स्टूडेंट्स होते हैं, आप स्कूल के क्या हो गए, स्टूडेंट हो गए, तो स्टूडेंट का रिकॉर्ड मेंटेन करने के लिए भी कंप्यूटर का यूज़ किया जाता है स्कूल में. देन एट अ होम, computer is used in the home also. You can also use computer for making project report. जो आपको you can also use computer for making a project report. अगर आपको जो प्रोजेक्ट मिलता है उसका रिपोर्ट करने के लिए आप कंप्यूटर का यूज़ घर में कर सकते हैं. एंड डूइंग अ होमवर्क करने के लिए भी आप कंप्यूटर का यूज़ घर में कर सकते हैं. दे आर ऑल्सो यूज टू सेंडिंग ईमेल. अगर आपको किसी को ईमेल सेंड करना है, मीन्स मैसेज सेंड करना है, लाइक दैट वी कैन यूज़ अ व्हाट्सअप फॉर सेंडिंग अ मैसेज. जैसे हम व्हाट्सअप को यूज़ करते हैं मैसेज को सेंड करने के लिए, सेम ईमेल आईडी भी होती है हमारी, उसका यूज़ हम मैसेज को सेंड करने के लिए किया जाता है. दैट ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. दैट ई स्टैंड फॉर इलेक्ट्रॉनिक मेल. तो हम कंप्यूटर का यूज़ मैसेज सेंड करने के लिए कर सकते हैं, ईमेल को सेंड करने के लिए कर सकते हैं. सो फॉर दैट वी नीड अ वन ईमेल आईडी. उसके लिए हमें ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ती है. जैसे व्हाट्सएप पे अगर किसी को मैसेज हमें सेंड करना है तो उसके लिए हमें हमारा नंबर ऐड करना पड़ता है, तभी हम किसी को मैसेज सेंड कर सकते हैं. सेम अगर हमें किसी को ईमेल करना है, मेल करना है किसी को, तो फॉर दैट वी नीड अ ईमेल आईडी. उसके लिए हमें ईमेल आईडी की ज़रूरत पड़ते हैं. सो आर ऑल्सो यूज टू सेंड ईमेल. सो इन द होम कंप्यूटर इज यूज फॉर अ सेंडिंग मेल ऑल्सो. वो which are like the letter you post एट द पोस्ट ऑफिस. ईमेल मतलब जैसे हम लेटर को पोस्ट करते हैं, कहाँ पे, पोस्ट ऑफिस में. सेम वी कैन सेंड द मेल बाय यूजिंग अ कंप्यूटर. कंप्यूटर का यूज़ करके हम मेल को सेंड कर सकते हैं. मेकिंग अ प्रोजेक्ट रिपोर्ट. नाउ लुक एट हियर दैट बॉय, ही इज मेकिंग अ प्रोजेक्ट. क्या कर रहा है वो, प्रोजेक्ट को कर रहा है. सो व्हाट इज द स्पेलिंग ऑफ प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स? PROJECT, project, and report spelling is REPORTS, reports, project reports. Then in the second picture, that girl, she is sending mail by using the email ID. So what is the spelling of email? Mail spelling is MAILS, mails. MAILS, mail. So we can send message by using the email ID. We can send message by using a email ID. तो उसके लिए भी हमें जिसको मेल करना है, किसी को जिसको मैसेज करना है, उसकी भी हमें ईमेल आईडी पता होनी चाहिए. जैसे
जैसे फॉर एग्जांपल आप व्हाट्सएप पे अगर आपको किसी को मैसेज करना है तो आप उसके लिए आपको उस व्यक्ति का, उस पर्सन का आपको नंबर पता होना चाहिए। सेम अगर हमें किसी को मेल करना है, अगर हमें किसी को मेल करना है तो उसके लिए हमें उसकी ईमेल आईडी पता होनी चाहिए, तभी हम क्या कर सकते हैं, किसी व्यक्ति को हम मैसेज सेंड कर सकते हैं। So this is our lesson at uses of computer. So which are the uses of computer? We can use computer for playing games, type, making drawings and solve sum. So this is our lesson. Then next is the exercise computer manners. So these are we will see in our next period. So I hope all of you nicely understood. Thank you and have a nice day.